Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today I am going to discuss about the problems related to mass connected with string and string is passing over the pulley. I have already discussed the problems related to mass connected with string in my one of the video. You must go through that video in order to better understanding of this video. Here I have taken the pulleys are frictionless and string is weightless. Let me start our video. So before going through the particular problems, we must keep some points in the mind so that our problems become simple. The points are solving problems in mechanics, how we proceed. These are the few points that should be considered in mind to solve the problems related to mechanics where a number of forces are involved. We follow the following steps. So first step, first of all, draw a diagram showing the various part of the system with a link and choose any one convenient part of the system. Generally, figures are given in such type of the questions. If the figure is not given, you should draw the figure as per the given question. And after drawing the figure, choose one of the part of the figure, and in second point, draw the free body diagram of that part of the system showing all forces acting on it by remaining part of the system and also by the other agency. Means the part that you have selected, draw the free body diagram of that part, and in free body diagram you should show the forces, different forces acting on that part by the system or by the other agencies. And other agency may be the gravity of the earth. So in next point, in free body diagram, we include the information about the magnitude and direction of forces. Now we equate the net force acting in a particular direction to its mass times the acceleration produced in that direction. In free body diagram, we must show the direction of forces acting on that particular part, and then we find the net force. In what direction the net force is acting, and that net force should be made equal to mass टाइम्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम. तो मास किसका लेंगे हम? मास उस पार्ट का लेंगे जो हमने सिलेक्ट किया है, जिसको फ्री बॉडी डायग्राम में शो कर रखा है. केवल मास उसका लिया जाएगा, और क्योंकि पूरा सिस्टम मोशन में होगा तो सिस्टम का एक्सेलरेशन लिया जाएगा. फिर हम क्या करेंगे? फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. सिस्टम के जो अदर पार्ट्स हैं उसके लिए भी जो है सेम इस सिस्टम फॉलो करेंगे. मतलब हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उस पर लगने वाला नेट फोर्स पता करके नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट पार्ट इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम करेंगे. इस तरह से हमें डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी और उन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो है मिल जाएगा. तो वही फिफ्थ पॉइंट है, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑब्टेन फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन बी सॉल्व टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट. तो ये हमें स्टेप फॉलो करने हैं. मतलब पहले हमें डायग्राम नहीं गिवन है तो डायग्राम बनाना है, उसमें से एक पार्ट सिलेक्ट कर लेना है. फिर हमें उस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. फ्री बॉडी डायग्राम में हम उस पार्ट पर जो हमने चूज किया है उस पर लगने वाले डिफरेंट फोर्सेज को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ शो करेंगे और फिर पता करेंगे कि उस पार्ट पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, और वो नेट फोर्स जो है वो इक्वल कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से. और मास किसका लेंगे? उसी पार्ट का लेंगे जिसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है. इसी तरह से सभी पार्ट्स के लिए हम रूल फॉलो करेंगे. मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना करके नेट फोर्स पता करेंगे और नेट फोर्स को इक्वल करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से.
और फिर जो हमें इक्वेशंस मिलेंगी उनको सॉल्व कर लेंगे, तो जो क्वेश्चन में निकालने को, कैलकुलेट करने को कहा जाएगा वो आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम जो है हमारी वो है कि द पुली इज लाइट एंड स्मूथ, स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑफ द पुली। तो ये देखिए सिस्टम यहां पर दिया गया है, 3 masses आर कनेक्टेड विद स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली। हमें यहां पर पूरे सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये निकालना है, और स्ट्रिंग के डिफरेंट पार्ट्स में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी कैलकुलेट करना है, और फिर लास्ट में हमें इस पुली का रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग पर टेंशन शो करेंगे। तो देखिए ये पुली जो है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो पुली के दोनों साइड में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन जो है सेम हम लेते हैं। तो देखिएगा हमने यहां पर टेंशन सपोज टी ले लिया है, तो टी ही इधर ले लेंगे। ये मान लिया हमारा मास ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम 1 by 1 करके मासेस को लेते जाएंगे, उसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और जो सिस्टम में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो निकाल लेंगे, और जो टेंशन जो होंगे वो भी निकाल लेंगे। अभी देखिए ये तो टेंशन सेम हो जाएंगे, लेकिन यहां का जो टेंशन होगा वो डिफरेंट होगा। इसको हमने T1 शो कर दिया। अब देखिए जो हमारी बॉडी ए है उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिएगा। ये ब्लॉक ए है, इस पर एक फोर्स लग रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और एक फोर्स जो मास की वजह से, मतलब अर्थ जो अट्रैक्ट करेगी, मतलब वेट जो होगा वो पता लग रहा है, और वेट जो लगेगा 2 × 10। हमने जी की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली है, तो 20 न्यूटन का वेट डाउनवर्ड इस पर लग रहा होगा। और जैसा कि हमें पता लग रहा है कि ये देखिए इधर मासेज जो है 3 kg और 5 kg हैं, इधर केवल 2 kg मास है, तो सिस्टम को इस तरह से एक्सेलरेट होना चाहिए। बाई चांस आपने इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या होगा कि उससे हमारा ए की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और सभी कुछ एकदम से करेक्ट ही रहेगा, और वो करेक्ट माना भी जाएगा, है। तो अब इसकी इक्वेशन आप मोशन लिखें। तो देखिए जिस तरफ को मोशन हो रहा होता है उस तरफ को लगने वाला फोर्स जो है को हम लार्जर मानते हैं, क्योंकि देखिए ये 2 kg मास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो T है, और नीचे इसका जो वेट लग रहा है वो 20 न्यूटन है। तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो क्या होगा, T - W होगा। तो T फॉर ब्लॉक ए, T - W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका लेंगे, इसी ब्लॉक का लेंगे। एक्सेलरेशन हमने मान लिया है कि पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है, तो T - W की वैल्यू हमें मालूम है 20 इज इक्वल टू 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो है 3 kg का ले लीजिए मास, है ना। तो फॉर ब्लॉक बी ले लीजिए। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए बी ब्लॉक का, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, ये बी ब्लॉक है, और बी ब्लॉक पर एक ऊपर फोर्स लग रहा है T, और नीचे जो है इसमें देखिए बी ब्लॉक में टेंशन तो लग ही रहा है, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग विद C, तो टेंशन T1 लग रहा है। साथ में बी का वेट भी तो होगा, और वेट कितना लगेगा वो होगा, वेट W इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10, यानी 30 न्यूटन का वेट इसका होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी ब्लॉक पर 2 फोर्सेज लग रहे हैं, एक T1 लग रहा है, एक उसका वेट लग रहा है, और अपवर्ड जो है वो T टेंशन है।
क्योंकि ये 3 kg का मास डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब जो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं T1 और W, इनको पहले लिखेंगे और T को बाद में लिखेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा T1 प्लस W इज इक्वल टू, सॉरी, T1 नेट फोर्स हमें लेना है, तो T1 प्लस W डाउनवर्ड फोर्स हो गया, और अपवर्ड फोर्स कितना है, T है, इज इक्वल, ये हुआ नेट फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू ए, ये हो जाएगा T1, W कितना है इसका, वो है 30 न्यूटन, माइनस T इज इक्वल टू हो गया 3a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 हम बनाते हैं। तो थर्ड जो है सी ब्लॉक के लिए हो जाएगी। तो देखिएगा, सी ब्लॉक के लिए हम प्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फॉर ब्लॉक सी, फॉर ब्लॉक सी ब्लॉक के लिए देखिए, इसका वेट, सी ब्लॉक यहां फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये सी ब्लॉक है और इस पर एक टेंशन ऊपर लग रहा है T1, और इसका वेट 5 इंटू 10 यानी 50 न्यूटन का वेट होगा इसका डाउनवर्ड, और ये सिस्टम डाउनवर्ड जा रहा है, तो 50 न्यूटन को हम पहले रखेंगे। 50 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इसका 5 है इंटू ए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, देखिएगा जब 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो ये T देखिए पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब थर्ड वाली इसके साथ ऐड होगी तो T1 यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब जितने टेंशन है LHS में वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं ऐड करने पर। तो फोर्स हमें जो मिल रहे हैं वो मिल रहा है, देखिए -20 फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा, +30 दूसरी इक्वेशन से मिलेगा, और +50 थर्ड इक्वेशन से मिलेगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज हैं वो है 2a यहां से 3a, 5a और 5a 10a है। तो इस तरह से जो है हमारा 80 माइनस 60 आ गया, ये 60 इज इक्वल टू 10a, a इज इक्वल टू हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, वो आ गई है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम टेंशन निकाल लें, डिफरेंट इक्वेशन जो हैं उनकी हेल्प से टेंशन निकाल सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है T माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, इससे T निकल जाएगा। देखिएगा, इसमें हम a की वैल्यू रख दें इस इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 T माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 है, तो T इज इक्वल टू आ गया 20 प्लस 12 दैट इज 32 न्यूटन। तो T की वैल्यू आ गई 32 न्यूटन। तो ये 32 होगा, ये भी 32 होगा, है ना। अब T1 निकालना है, तो T1 के लिए या तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करें या फिर जो है सेकेंड वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो T1 के लिए हम यूज कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन। तो देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 है। तो 50 माइनस 30 इज इक्वल टू T1, तो T1 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। तो यहां पर टेंशन जो है वो 20 न्यूटन का है। अब हम क्या पता करना है, रिएक्शन ऑफ द पुली। पुली का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ से फोर्स लग रहे हैं पुली पे। ये रिएक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, जो R इज इक्वल टू हो जाएगा T प्लस T, यानी 2T हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ द पुली R इज इक्वल टू T प्लस T करेंगे हम, और T की वैल्यू आई थी 32 न्यूटन। तो रिएक्शन पता लग जाएगा, देखिएगा रिएक्शन ऑफ पुली, रिएक्शन ऑफ पुली
हाफ पुल। R इज इक्वल टू हो जाएगा, ये फिगर हमने बना रखा है, R इज इक्वल टू टी प्लस टी, तो R इज इक्वल टू 2T, 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64 न्यूटन। अच्छा, जो हम लोगों ने पहले एक्सेलरेशन निकाला था, उस एक्सेलरेशन को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना इक्वेशन बनाए। बस हम क्या करें, सिस्टम पे नेट फोर्स पता करें और उस नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल लिख दें, तो एक्सेलरेशन तुरंत पता लग जाएगा। कोई इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है। इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तब जब हमें टेंशन निकालना होगा। तो उसको भी देख लीजिए किस तरह से हम जो है एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा झंझट के, है ना। तो देखिएगा नेट फोर्स कितना लग रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये 20 न्यूटन जो लगेगा वो डाउनवर्ड होगा, और क्योंकि सिस्टम हमारा ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहे हैं एक्सेलरेशन ए से, तो इस तरफ देखिए जो फोर्स लगेगा वो होगा 80 न्यूटन का। 3 प्लस 5 8 इंटू 10, तो 80 न्यूटन इधर है और 20 न्यूटन इधर है। तो ये जो फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, वो 20 न्यूटन से जो है अपोज किया जा रहा है। भाई ये जो मासेज हैं वो इसको ऊपर उठा रहे हैं, है ना, और खुद नीचे जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब नेट फोर्स यहां पर कितना लगेगा, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 20, तो यह नेट आ गया 60 न्यूटन। अब F नेट इज इक्वल टू लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 60 इज इक्वल टू मास पूरे सिस्टम का लेंगे हम। पूरे सिस्टम का मास कितना है, 10 है, इंटू एक्सेलरेशन, तो A इज इक्वल टू आ गया 60/10, 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिएगा नेट फोर्स से भी हमने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिया है। T1 और T को निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, यह है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहां पर देखिए पुली है जो कि फ्रिक्शनलेस है, तो पुली के दोनों साइड में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन जो होगा वो सेम होगा, तो हमने यहां पर भी T लिख दिया है और इधर भी T लिख दिया है। अब इस ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसके वाले प्रीवियस वीडियो में भी हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया था। तो इसका जो वेट होगा और जो रिएक्शन होगा वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, R इज इक्वल टू W। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए। तो ब्लॉक ये किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, T, है ना। तो T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे, क्योंकि सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, A प्रोड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए ब्लॉक ए है, बी ये है, फॉर ब्लॉक ए T इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T इज इक्वल टू 2A, फर्स्ट इक्वेशन। फॉर ब्लॉक बी, इसमें देखिए इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा जो कि 5 इंटू 10 यानी 50 न्यूटन का होगा। और मैंने कहा कि जिस तरफ को मोशन हो रहा है उस तरफ लगने वाले फोर्सेस को हम लार्जर मानते हैं, तो 50 माइनस T करेंगे नेट फोर्स। ब्लॉक बी पर नेट फोर्स लगेगा 50 माइनस T, ये नेट फोर्स हो गया। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 5 kg है, एक्सेलरेशन सिस्टम का है, तो 50 माइनस T इज इक्वल टू 5A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को ऐड किया तो देखिए T और T, ये वाला T
इसमें टी और ये वाला टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है तो टी टी कैंसिल हो जाएंगे, 50 केवल बचेगा। तो 50 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए 5a और 2a 7a, तो a इज इक्वल टू हो गया 50/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन पता करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लीजिए। तो t फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू है 50/7, तो 100/7 जो है न्यूटन टेंशन स्ट्रिंग में होगा, है ना। तो इस तरह से हमने जो है टेंशन की वैल्यू निकाल ली और एक्सेलरेशन निकाल लिया। मैंने जैसे कहा कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, नेट फोर्स सिस्टम में कितना लग रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो ब्लॉक है इसका वेट और रिएक्शन कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है किस पे, जो 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है उस पर। तो नेट फोर्स सिस्टम पे लग रहा है 50 न्यूटन का, है ना। तो इस तरह से देखिए नेट फोर्स सिस्टम पे कितना लग रहा है 50 न्यूटन का। नेट फोर्स इज इक्वल टू लग रहा है 50 न्यूटन। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट है 50 इज इक्वल टू मास कितना है 7 है, एक्सेलरेशन ए है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 50/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तुरंत एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जा रही है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, उसमें हमने 3 मासेस लिए हैं। मास देखिए इसको हम ए ले लेते हैं, ये सपोज बी है, ये सी है, और सिस्टम देखिए ये हैवी है, ये 3 kg है, इसका तो कोई रोल होगा नहीं अपोजिशन के लिए, मतलब ये जो फोर्स लगाएगा इसी ब्लॉक के फोर्स की वजह से ये सिस्टम के जो ब्लॉक्स हैं वो इस तरफ को मोशन करेंगे, है ना। अब हम जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्वेशन बना दें, है ना। तो फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए दिखेगा, ब्लॉक ए पर ये मान लिया हमारा ब्लॉक ए है, एक फोर्स लगेगा T1, यहां दिखाया गया तो T1 मैंने लिख लिया, है ना। और इसका वेट जो है 5 × 10 यानी 50 न्यूटन एक्ट कर रहा होगा। और यहां पर भी देखिए जो पुलीज है वो फ्रिक्शनलेस है, तो पुलीज के दोनों तरफ वाली स्ट्रिंग में टेंशन सेम लेना पड़ता है, तो हमने यहां T1 लिया, यहां भी T1 ले लिया। दूसरी वाली स्ट्रिंग के लिए, सॉरी दूसरी वाली पुली के लिए हमने एक तरफ T2 ले रखा है, तो दूसरी तरफ भी हम टेंशन T2 ही लेंगे। तो ये एक पुली है, ये दूसरी पुली है, तो इस पुली के दोनों तरफ सेम टेंशन, दूसरी वाली पुली की तरफ भी सेम टेंशन लेते हैं। अब देखिए यहां पर ये ब्लॉक ए जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना, इसका एक्सेलरेशन कितने डाउनवर्ड है, तो इस वाले फोर्स को लार्जर लीजिए, तो 50 - T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इसका हो गया एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ये है, तो 50 - T1 इज इक्वल टू 5a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर ब्लॉक बी। बी पर जो फोर्स लग रहा है वो है 2 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन बी ब्लॉक, तो T1 और T2, और T1 को हमें लार्जर लेना पड़ेगा, है ना भाई। ये जो है यहां पर दोनों डायरेक्शन में हमें शो करना चाहिए ऐसे, है ना। तो ये हो गया T2। जब इसका लेंगे ब्लॉक बी को लेंगे तो ऐसे दिखाएंगे, इधर T1 है, इधर T2 है, और इसका मास कितना है 2 kg है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है T1 - T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 - T2 इज इक्वल टू 2a। T1 - T2 इज इक्वल टू 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ब्लॉक सी के लिए ले लीजिए,
तो ब्लॉक सी में हम क्या करेंगे, उसी तरह से वेट हमें शो करना पड़ेगा। ब्लॉक सी के लिए वेट इसका 30 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और क्योंकि ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तो T2 को हमें लार्जर लेना पड़ेगा। तो फॉर ब्लॉक सी T2 माइनस 30 इज इक्वल टू 3A। तो पूरी इक्वेशन में हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में जो टेंशन होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहां भी देखिएगा, व्हेन वी ऐड द इक्वेशन 1 2 3 तीनों इक्वेशन को ऐड करिए, देखिए T1 यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये T1 कैंसिल आउट हो जाएगा। T2 यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो T2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पहली इक्वेशन से T मिलेगा, दूसरी इक्वेशन में T1 T2 कैंसिल आउट हो गया तो कुछ नहीं मिला, और थर्ड इक्वेशन में देखिएगा हमें मिलेगा माइनस का 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सभी के कितने हैं 5, ये इधर है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10A, तो 20 इज इक्वल टू हो गया 10A। इट इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टम में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस होगा। अब हम टेंशन T1 और T2 की वैल्यू निकाल लें, तो बस इसमें इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू T1, तो 40 इज इक्वल टू T1। तो T1 की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन, T1 आ गया 40 न्यूटन। अब T2 निकालें, T2 के निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, है ना। तो T2 के लिए थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ये है, तो T2 माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, T2 है, T2 इज इक्वल टू हो गया 6 प्लस 30, दैट इज 36 न्यूटन। तो इस तरह से T2 की वैल्यू 36 न्यूटन आ गई है, और T1 की वैल्यू जो है 40 न्यूटन आ गई है। जैसा कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, नेट फोर्स से भी हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। तो देखिए ड्राइविंग फोर्स जो है वो 5 kg का जो मास है, 5 kg का जो ब्लॉक है वो ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये जो 3 kg का ब्लॉक है वो उसका अपोज कर रहा है ना। तो इस तरह से हम नेट फोर्स निकालते हैं सिस्टम पे, कितना लग रहा है नेट फोर्स, इसका कोई रोल नहीं है। ए, बी और सी ब्लॉक जो है, केवल यही दो जो ब्लॉक्स हैं, एक सपोर्ट कर रहा है मोशन को, दूसरा उसका अपोज कर रहा है ना। तो इसका वेट जो है 50 न्यूटन यहां लग रहा है, और इसका वेट जो है ये है 30 न्यूटन। क्योंकि ये सिस्टम ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, एक दूसरे में जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब अच्छा इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसका जो वेट है और जो रिएक्शन है वो आपस में बैलेंस्ड है, तो इसका नो रोल इन एक्सेलरेटिंग और डीएक्सेलरेशन। तो देखिएगा नेट फोर्स यहाँ निकाल लेते हैं। नेट फोर्स सिस्टम का आ रहा है 50 माइनस 30 दैट इज 20 न्यूटन। अब नेट फोर्स या फिर नेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। 20 इज इक्वल टू हो गया मास पूरे सिस्टम का लेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 2 यानी 10 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिंपल सी प्रॉब्लम है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इधर 60 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है। अब देखिए ये पुली है, पुली के बोथ साइड हमें टेंशन सेम लेना है, तो ले लिया। एंगल ये हायर है, यहां पर इंक्लिनेशन हायर है, तो निश्चित रूप से मासेस सेम है, एंगल इधर लार्जर होने की वजह से ये जो सिस्टम है वो इस तरफ
को एसेलरेट होगा, मतलब ये ब्लॉक जो है डाउनवर्ड आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा एसेलरेशन ए से। अब हमें मालूम है कि देखिए ये जो ब्लॉक है जो 60 डिग्री पे रखा हुआ है, इधर 2 kg का, इस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो देख लेते हैं कि देखिए वेट जो है इसका 2 kg है ना, तो 2 इंटू 10 यानी 20 न्यूटन का वेट है इसका। अब ये एंगल जो होता है वो जितना ये होता है उतना ये होता है, 60 डिग्री है। इस वेट को हम रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जो आएगा 20 cos 60 डिग्री, और इस तरफ जो आएगा कंपोनेंट वो आएगा 20 sin 30 डिग्री, और ये रिएक्शन होगा। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन तो है नहीं, तो R और ये जो 20 cos 60 डिग्री, R इज इक्वल टू हो जाएगा 20 cos 60 डिग्री, ये बैलेंस्ड हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो गए, तो इनका कोई रूल नहीं होगा। केवल 20 sin 30 जो फोर्स लग रहा है, सॉरी 30 नहीं 60 डिग्री है, इसे 60 डिग्री ना, एंगल तो 60 डिग्री है ना, ये होगा 20 cos 60 डिग्री, ये होगा 20 sin 60 डिग्री। तो इस फोर्स की वजह से ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा, और इस तरफ जो टेंशन लग रहा है वो T है ना। तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा इस पे। इस ब्लॉक ए इसको ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं, तो ये ब्लॉक ए का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। देखिए ब्लॉक ए को रखा, इस पर इस तरफ फोर्स लग रहा है 20 sin 60 डिग्री, और ये वेट है जो कि 20 न्यूटन है, और इस तरफ जो लग रहा है 20 cos 60 डिग्री, तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं R और 20 cos 60 डिग्री, इस तरफ को T लग रहा है, टेंशन है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दिस फोर्स माइनस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फॉर ब्लॉक ए 20 sin 60 डिग्री माइनस T इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 20 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2 माइनस T इज इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा 10, तो 10√3 माइनस T इज इक्वल टू 2a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड वाले ब्लॉक को देखते हैं और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा ये ब्लॉक है, मास इसका भी 2 kg ही है, हाँ एंगल 30 डिग्री है, ये ब्लॉक हो गया 2 kg का बी ब्लॉक है ना। इसका वेट जो है वो W इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 यानी 20 न्यूटन, ये भी हो गया। अब ये रिएक्शन हो गया इंक्लाइन प्लेन का, और ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। इस वेट का कंपोनेंट इधर कर देते हैं तो ये आता है 20 cos 30 डिग्री, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, R इज इक्वल टू हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री। इस वेट का जो इधर कंपोनेंट होगा वो इधर वाले फोर्स को, जो ड्राइविंग फोर्स है इसकी वजह से, उसका अपोज करेगा, जो कि होगा 20 sin 30 डिग्री, और इस तरफ को जो फोर्स लग रहा है वो T लग रहा है। ये ब्लॉक बी की सिचुएशन है। तो नेट फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस्ड हो गए हैं। नेट फोर्स जो है वो लग रहा है T माइनस दिस, क्योंकि मोशन इसका ऊपर की तरफ हो रहा है। तो फॉर ब्लॉक बी तो हमें लिखना पड़ेगा T माइनस 20 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए, तो T माइनस 20 इंटू साइन 30 1/2 इज इक्वल टू 2a, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा T माइनस 10 इज इक्वल टू 2a, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें तो देखिए ये वाला T कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज माइनस साइन एंड इट इज पॉजिटिव। तो देखिए क्या बनेगा, T कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा जो है अन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 10√3 माइनस
माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 4a। 10 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4a। तो 10 इंटू √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, उसमें से 1 माइनस हो गया तो बचा हमारे पास 732 4a। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.32 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 7.32 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसमें, और इस एक्सेलरेशन को भी हम निकाल सकते हैं पूरे सिस्टम पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी हेल्प से, वो अभी हम बताएंगे। टेंशन और निकाल लीजिए। टेंशन के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, देखिएगा, है ना। टेंशन के लिए सेकंड इक्वेशन जो हमने लिखी है उसको यूज कर लेते हैं। तो टी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 टी माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन आया 1.83। तो टी माइनस 10 इज इक्वल टू ये, तो टी इज इक्वल टू हो गया 13.66 न्यूटन। ये टेंशन हो गया। अब डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालने का तरीका वही है कि नेट फोर्स पता करें। देखिएगा, अब इस पर जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है वो इस तरफ को लग रहा है, ये मैंने बताया था। वो कितना लग रहा है 20 sin 60 डिग्री, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस ड्राइविंग फोर्स का अपोज कर रहा है, वो लग रहा है 20 sin 30 डिग्री। तो नेट फोर्स ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो 20 नेट फोर्स ऑन सिस्टम 20 sin 60 डिग्री माइनस 20 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास पूरे सिस्टम का 4 है, और ये तो ये हो जाएगा आपका 20 √3/2 माइनस 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू ये। देखिए वही चीज हमें मिल जा रही है जो अभी मिली थी। ये 20 है, 10 जा, ठीक है ना। तो 10 √3 माइनस 10 इज इक्वल टू 4a। तो 10 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4a, और यहां से भी a की वैल्यू उतनी ही मिलेगी जितनी की अभी मिली थी। a इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स से भी हम एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। टेंशन के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी ही पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड है। देखिएगा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां देखिए 3 ब्लॉक्स हैं। अब एक्सेलरेशन जो शो किया गया है, ये देखिए 2 kg का मास है, यहां पर 3 kg 5 kg के मासेस हैं। तो ये ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस करेंगे और ये उसका अपोज करेगा, है ना, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन अपवर्ड है, यहाँ पर डाउनवर्ड है ना। तो पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये ब्लॉक ए है, मान लिया ये बी है, ये सी है। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ए बॉडी का, इस पर वेट जो लग रहा है वो 20 न्यूटन का डाउनवर्ड लग रहा है, और टेंशन देखिए T2 और T2 हमने पुली के बोथ साइड जो टेंशन लिए जाते हैं वो सेम लिए जाते हैं। तो ये भी T2 ये भी T2, तो T2 हमने लिख दिया। और ये सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ ब्लॉक जा रहा है, तो T2 माइनस दिस करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर ब्लॉक ए T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, पहले एक का समझे और दूसरे का भी उसी तरह से बन जाएगा। तो पहले हम सी ब्लॉक का देख लेते हैं। हालांकि ब्लॉक हम दोनों बना ले रहे हैं। ये 30 डिग्री एंगल है, 5 kg का मास यहाँ पर रखा है जिसका नाम सी है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था कि यहाँ पर इसका वेट एक्ट करेगा जो कि 550 न्यूटन होगा। इसका रिएक्शन
ऊपर जाएगा इंक्लाइंड प्लेन का। इसका जो वेट का ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। वेट का कंपोनेंट ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा 50 cos 30 डिग्री। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, जो साइन वाला कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वो ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा, वो हो जाएगा 50 sin 30 डिग्री। मतलब ये आ जाएगा 25, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 होती है, 50 लिखा हुआ तो 25 न्यूटन इस ब्लॉक की वजह से एक फोर्स डेवलप हो रहा है। दूसरा ब्लॉक देखिए जरा, जो बी ब्लॉक है, इसका वेट 30 न्यूटन है, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 30 cos 30 डिग्री। और ये रिएक्शन और ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। मान लिया R2 है तो ये R1 हो गया, तो ये बैलेंस्ड हो गए, तो इनका कोई रोल नहीं होगा। हाँ, ये जो है इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा वो होगा साइन के टर्म्स में, वो हो जाएगा 30 sin 30 डिग्री। 30 sin 30 डिग्री का मतलब है साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये 15 न्यूटन डेवलप करेगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, और दोनों पर जो कंबाइंड लग रहा है वो टेंशन T2। तो हम इनको दोनों को साथ साथ ले सकते हैं। नहीं तो इसकी इक्वेशन बनाइए, फिर इसकी इक्वेशन बनाइए, अलग अलग बना दीजिए। अदरवाइज इसको कंबाइंड ले लीजिए और कंबाइंड मास टोटल जो ड्राइविंग फोर्स है उसको लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये 50 न्यूटन है, 150 नहीं है, 15 न्यूटन है, ये 25 न्यूटन है। तो ये फोर्स और ये फोर्स ऐड हो जाएंगे। फॉर बोथ ब्लॉक लिख लेते हैं, फॉर बोथ ब्लॉक्स बी एंड सी। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, देखिए ये वाले रिएक्शन और उनका जो कंपोनेंट है कॉस वाला कंपोनेंट तो बैलेंस हो जा रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर के डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है 25 + 15, और ये सिस्टम किधर जा रहा है, तो 25 + 15 को साथ साथ लीजिए, 25 + 15 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो गया 8 हो गया टोटल मिला के, इंटू ये, तो ये हमारा हो गया 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 8A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए T2 फिर से कैंसिल हो रहा है, ये एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिएगा 8 + 2 10A, तो 20 इज इक्वल टू हो गया 10A, तो A इज इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरे सिस्टम में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और T2 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना पड़ेगा हमें। देखिए T2 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, T2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल दीजिए, तो T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 × 2, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 + 4, T2 इज इक्वल टू 24 न्यूटन, है ना। अब T1 निकालना है, तो T1 के लिए निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे। हालांकि हमने थर्ड इक्वेशन नहीं बनाई है, 2 ही इक्वेशन बनाई है, लेकिन हम इस ब्लॉक के लिए देख लेते हैं, सी वाले ब्लॉक के लिए, और वहां से हम जो है सीधे जो है T1 निकाल लेंगे, वो आसान पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए थर्ड इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं ये भी सीख लीजिए। क्या है सी ब्लॉक के लिए, सी ब्लॉक का जो हमने देखा था कि सी ब्लॉक पर एक फोर्स इधर लग रहा था, वो लग रहा था 25 न्यूटन का, 25 न्यूटन का लग रहा था। इधर लग रहा है T1, है ना, इसको हम ऐसे दोनों तरफ को बनाते हैं ना ये रोज, और ये जो रिएक्शन था और ये जो इसका कंपोनेंट था वेट का वो कैंसिल आउट हो गया था, ये कैंसिल आउट हो गया था। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि ये डाउनवर्ड मोशन है, तो 25 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है पूरे सिस्टम में कैलकुलेट कर चुके हैं 2, है ना।
हम इससे T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू T1, तो T1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ये जैसा कि और क्वेश्चनों में हमने किया है कि नेट फोर्स जो सिस्टम पे लग रहा है, नेट फोर्स जो सिस्टम पे लग रहा है, उसकी हेल्प से भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। उसको भी देख लीजिए। देखिएगा ये कितना फोर्स, ड्राइविंग फोर्स डेवलप कर रहा है 25 न्यूटन का। ये ब्लॉक कितना ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है 15 न्यूटन का, हम देख चुके हैं। तो ये दोनों फोर्स जो है, ये वाले, एक 15 न्यूटन का फोर्स है यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन के 15 न्यूटन का है, और उसी डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का। और जो ये फोर्स है, मतलब इसका वेट जो है वो 20 न्यूटन वो अपोज कर रहा है ना। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा नेट फोर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो लग रहा है सिस्टम पे, वो लग रहा है, देखिए 25 प्लस 15, ये सपोर्टिंग में है दोनों फोर्स, और माइनस 20 इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। पूरे सिस्टम का मास कितना है, वो है 10 इंटू ए। तो देखिए 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 10a, 20 इज इक्वल टू 10a, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तुरंत निकल गया। नेट फोर्स सिस्टम पे पता करिए और उसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दीजिए। मास क्या लिया जाएगा, पूरे सिस्टम का लिया जाएगा, क्योंकि हमने सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स पता किया है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100% जो है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।